Okay, let us begin with Omkar. Om. 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 Hi Ram. So any problem to anyone in NPO? Hi Ram. NPO में किसी को कोई प्रॉब्लम अभी? No, sir. Okay, so can we go ahead for partnership? Yes, sir. Okay, let me share the screen. Okay, so now in partnership we have five chapters basically. First chapter is fundamentals of partnership. Okay, second chapter is change in profit sharing ratio among existing partners. Third is and fourth one is retirement and death of a partner. And fifth one is sorry. Okay. So these are five chapters in partnership section. And this book, first book is only related to these chapters now. So one chapter is NPO and other chapters are only partnership. This has weightage of 30 marks. Weightage of partnership is 30 marks. Now let us start with the first chapter. First chapter is fundamentals of partnership. Regarding fundamentals,
we have discussed in 11th class in second chapter forms of business organization. So what we discuss meaning of partnership, characteristics or features of partnership, characteristics or features of partnership. After then we discuss in 11th class that is relevant here also, that is the rights and responsibilities of partner. Rights and responsibilities of partners and partnership deal. Okay. So these topics are again relevant here for this year. Last year we discussed theory only about it. This year we have to prepare the accounts for partnership firms. But meaning, features, partnership deed, they are the same. Concept is same. So what is partnership? Who can define partnership? Hey Ram, you बता सकता है meaning of The partnership? agreement. Sir, according to Indian Partnership Act 1932, partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share the profits and losses of the business. Okay, very good. So this is the best definition by Indian Partnership Act 1932. That partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits and losses of a business carried on by all or any of them acting for all. So on the basis of this definition, we discuss some features of partnership, that partnership needs two or more persons, है ना? Two or more persons. Two or more persons means for a partnership firm, minimum number is two and maximum number is 50. है ना? So for making a partnership, there must be at least two persons. These two persons should be major. That means above 18 years of age, sound mind, and capable of making an agreement. So partnership is a relationship. Relationship means agreement. Partnership is a relationship between persons. Persons means you get two or more persons. Relationship means agreement. So partnership comes into existence by agreement. So there must be compulsorily an agreement between the partners. This agreement may be in writing or this may be an oral agreement. If it is in writing, this agreement is called partnership deed. Now, what is partnership deed? Partnership deed is nothing except the agreement in writing between the partners. That is called partnership deed. Okay. So first feature is clear. Two or more persons. Na? Agreement. There must be agreement between two persons for running this business. Okay. Agreement for what? Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits or losses. किसका प्रॉफिट और लॉसेस? प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ ए बिजनेस, है ना? तो उसका एक और अगला फीचर है लीगल बिजनेस. So for a partnership firm, there must be some business that must be legal business. So partners must make the agreement to run a legal business. Uh, what is a legal business or what is a illegal business? If a business is not defined illegal by government, that is a legal business.
If government decides this will be illegal business, then it will be illegal business. Okay, no other criteria. And why they are earning profit? Why they want to run the business? They want to run the business for earning profit, and that profit must be shared. So sharing of profits. Sharing of profits and losses both. So whatever profit is earned by the partnership firm, or if there is loss in partnership firm, that profit or loss must be shared between the partners. Okay. How this will be shared? That profit sharing ratio will be decided by the partners. And if partners do not decide their profit sharing ratio, it will be shared equally. But sharing of profits and losses are compulsory for partnership. Okay, so sharing of profits and losses. Then आपने पढ़ा था लास्ट ईयर भी आया था, बहुत परेशान किया था इसने आप लोग को. वो फीचर क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. पता है क्या आप लोग को ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसको पता है? सर जिसमें पर्सनल एसेट्स यूज होते हैं. हाँ, so in partnership firm the liability of all partners is unlimited. If there is a loss in the firm and it is unable to pay the loss by firm property, then personal assets of the partners can be taken for losses of the firm. That is unlimited liability in partnership. It is unlimited jointly, collectively and individually. सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी है, और अगर किसी पार्टनर पर पैसा नहीं बचता, जो पार्टनर के पास पैसा होगा वो देगा. वो नहीं कह सकता कि मेरी लायबिलिटी बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना. इट इज इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली अनलिमिटेड. फिर इसमें पढ़ा था आपने कि दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. इसका एक फीचर है एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब है कि इन पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर इज ए ओनर एज वेल एज एजेंट, है ना. ईच पार्टनर इज ए ओनर एज वेल एज एजेंट. तो whenever any partner is making any agreement for the firm, he will not be responsible only, but other partners will also be responsible for that agreement, because it is considered that at that time that partner was working as an agent for others. So he was the agent and others partners were the masters. So in an agency contract, masters are responsible for the agreement made by the agent. So if one partner is making agreement on behalf of firm, then all partners will be responsible for that agreement. Other partners cannot say that because agreement was made by that partner, so he will only be responsible for that. So there is an agency relationship because the agreements can be made by all, or business can be run by all, or any of them acting for all. On behalf of all, anyone can run the business. Okay. So these are the main features of partnership. We discussed last year also. 11th class. Again, these are the features. Now, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स. देखो, एवरी पार्टनर इज, उसका राइट होता है कि ही कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, है ना. वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है फर्म के. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. यूनानिमिटी, इट्स नॉट ए मेजॉरिटी डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन. जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी कोई डिसीजन ले सकते हैं. तो हर एक पार्टनर का राइट है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उससे कंसल्ट किया जाए. उसके बाद है एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू सी द बुक्स, चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, है ना. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस. अभी बताया था आपको. किस रेशो में मिलेगा वो आपस में डिसाइड करेंगे वो लोग. ठीक है. अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है और कोई इंटरेस्ट का रेट डिसाइड नहीं किया है,
तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट। उस लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का उसको राइट है। अगर रेट फिक्स किया तो उस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा उसको, और रेट फिक्स नहीं किया है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ही विल गेट ऑन द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म। ठीक है। उसके बाद अगर फर्म किसी को एडमिशन देती है नए पार्टनर को तो उससे पूछेंगे। ठीक है। कोई भी पार्टनर चाहे तब फर्म से रिटायर हो सकता है जब उसकी इच्छा हो तब नोटिस देके। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म के लिए कोई पैसा खर्च किया है, the money is spent for firm, that amount can be taken by the partner from the firm। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? एक तो होता है कि वो he has to perform whatever task is given to him to the best of his abilities, है ना? जो भी उसको काम दिया है उसको अपनी बेस्ट एबिलिटी से करना चाहिए। दूसरा है, अगर वो फर्म से कोई सिमिलर बिजनेस नहीं चलाना चाहिए। ही शुड नॉट रन एनी बिजनेस दैट इज सिमिलर टू द फर्म्स बिजनेस, है ना? एंड इफ ही इज डूइंग सो, द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस शुड बी गिवन टू द फर्म। ये चार लोग पार्टनर है एबीसीडी, और उनकी कपड़े की फर्म है, और ए ने अपनी कपड़े की दुकान और खोल ली अलग से। तो ये कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसने खोली है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो फर्म को देना पड़ेगा। बिकॉज इट इज एज्यूम दैट वॉट एवर कस्टमर्स आर कमिंग टू ए, दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ देयर फर्म। ओके, so that way the partner should not run any business similar to the business of the firm। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड, ये अच्छा है, आपने पढ़ा था लास्ट ईयर। कौन बताएगा पार्टनरशिप डीड? It is a document which defines relations between the partners who are sure to पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सप्लेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, है ना? ओरल भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि वो राइटिंग में हो, है ना? तो पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट in writing between the partners which explains terms and conditions of the partnership। ठीक है। कौन कौन से रूल्स पे फर्म चलेगी, they are explained or they are decided by the partners and they are written in a document that is called a partnership deed। So partnership deed is basically a document which contains rules for internal management of the firm। फर्म का काम कैसे चलेगा, that is decided by the partners, and these rules are written by them in a document which is called a partnership deed। नॉर्मली क्या लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में? सब कॉमन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, है ना? क्या लिखना पड़ेगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, दैट दे हैव टू राइट नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। The name, address, and other details of the partners they have to write in the partnership deed। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हेड ऑफिस कहाँ पर होगा फर्म का? मे बी फर्म विल बी ऑपरेटिंग एट मेनी प्लेसेस, सो दे हैव टू मेंशन इन पार्टनरशिप डीड वेयर विल बी द हेड ऑफिस ऑफ द फर्म। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करेगी फर्म? कपड़े का व्यापार करेगी, कुछ और काम करेगी, है ना? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है या कोई प्रोडक्शन का काम है। तो वट एवर इज द नेचर ऑफ द बिजनेस दैट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। फिर किस डेट से पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, कमेंसमेंट। अब इसका इंपॉर्टेंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। फर्म में हर एक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा। ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लिखना पड़ेगा कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना?
द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल बी अलाउड और नॉट। अगर आपने लिखा यस यहाँ मिलेगा तो फिर रेट भी लिखना पड़ेगी उसको, एट व्हाट रेट, कितना रेट पे इंटरेस्ट देगी फर्म पार्टनर्स को। अगेन इट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड और नॉट। फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी कैपिटल्स पे या नहीं देगी, नहीं देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर देगी तो फिर कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी, दैट इज टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है। सेम फॉर ड्राइंग्स। पहली चीज तो है कि ड्राइंग्स करने की परमिशन होगी कि नहीं होगी, यानी अपने पर्सनल काम के लिए वो फर्म से पैसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो कितनी लिमिट होगी उसकी, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ ड्राइंग्स, ईच पार्टनर कैन मेक हाउ मच ड्राइंग्स, है ना, कितना ड्राइंग कर सकता है वो। और अगर ड्राइंग्स करना परमिशन दी है तो क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज और नॉट, फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नॉट। तो इंटरेस्ट लेगी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? सही राम। यस सर। ये कैलकुलेशन वाले इश्यू चलता रहेगा, लिखना पड़ेगा आपको कि पहली बात तो ड्राइंग अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। करेंगे तो कितना अलाउ करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप तो सार्वजनिक काम है, वो तो कोई भी कितना ही पैसा निकाल के बैठ जाएगा फिर अपने काम के लिए। तो आपको लिमिट फिक्स करना पड़ेगी कि कितने पैसा निकाल सकते हो आप। ठीक है। अब दूसरी बात ये हुई कि अगर हम ड्राइंग्स अलाउ कर रहे हैं तो क्या फर्म इंटरेस्ट लेगी उनकी ड्राइंग्स पे, अगर लेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा उसका। ठीक है, दैट विल बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? ये सब हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आएगा ये हमारे सारे। ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिस मस्ट बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। आपको क्या बताया अभी पार्टनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेज इज कंपलसरी, विदाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज देयर कैन बी नो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस के लिए कंपलसरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो। अगर प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं होता तो किसी बिजनेस में दैट बिजनेस कैन नॉट बी कॉल्ड ए पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है भाईराम? Yes, sir. तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज मस्ट बी शेयर्ड। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ये लिबर्टी पार्टनर्स को दी है कि दे कैन डिसाइड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रिस्क। तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर करेंगे। हो सकता है 1:10 करें, हो सकता है कि 5:5 करें, जो भी करना है वो कर सकते हैं। दे आर फ्री टू फिक्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रिस्क, है ना। तो दैट इज टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स अपना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स दिए हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली, है ना। तो पहला तो हमने उनको चॉइस दिया कि अपना रेशो डिसाइड कर लो, बाद में मत बोलना कि मेरी कैपिटल ज्यादा थी, इसकी कैपिटल कम थी, इसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए मुझे ज्यादा। तो आप अपना डिसाइड कर लो पहले। अगर वो नहीं डिसाइड करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वली, है ना। पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स दिए हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा, दैट इज इक्वल रेशो रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। किसी की कैपिटल ज्यादा है, किसी की कैपिटल कम है, बट प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली। तो ये आपकी चॉइस है, पहले आप खुद ही डिसाइड कर लो, अदरवाइज इट विल बी शेयर्ड इक्वली। So that is mentioned in the partnership deed. इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर लोन देता फर्म को तो उस लोन पे फर्म इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी, अगर देगी तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी, ये भी आपको बताया था। या तो फर्म डिसाइड करेगी कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी लोन पे, और नहीं डिसाइड करते हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन लोन, है ना। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो उस पर उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। उसके बाद है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। फर्म पार्टनर्स को कोई सैलरी या और कोई रेम्यूनरेशन देगी या नहीं देगी, अगर देगी तो उसका रेट कितना होगा, रेट ऑफ द सैलरी और रेम्यूनरेशन। ठीक है। उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स कौन से होंगे, असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा,
कौन सा अकाउंटिंग की मेथड फर्म यूज करेगी, है ना, एडमिशन की प्रोसीजर क्या होगी पार्टनर की, नया पार्टनर आता है तो उसको कैसे एडमिट करेंगे, रिटायरमेंट अगर कोई चाहता है पार्टनर छोड़ना चाहता है तो कैसे प्रोसीजर रहेगा उसका, फर्म को डिजोल्व करने की प्रोसेस क्या होगी, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होगा, पार्टनर्स में अगर डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सॉल्व होगा, आपस में बैठ के सुलझाएंगे कोर्ट में जाएंगे, है ना। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर्स जितनी चीजें चाहो तो अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। दे आर फ्री टू राइट एन नंबर ऑफ आइटम्स इन देयर पार्टनरशिप डीड। जो भी उनको लगता है कि ये चीजें जरूरी है पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारी चीजें वो अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। एंड एट लास्ट दिस पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। इससे पता चलता है कि दे ऑल एग्री विद दी टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, कि वो सारे लोग इस चीजों से एग्री कर रहे हैं। दैट इज द सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है राम। Yes, sir. अब इसका दूसरा पार्ट है जो है वो इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अकाउंट बनाना है हमको पार्टनरशिप फर्म का। वो है रूल्स अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने क्या बताया आपको अभी कि पार्टनर्स आर फ्री टू मेक देयर ओन पार्टनरशिप डीड, है ना, वो अपने जो भी रूल्स बनाना चाहते हैं उनको फ्रीडम दी है पार्टनरशिप एक्ट में। बट इफ दे डू नॉट मेक देयर पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं है, या बनाते हैं तो कुछ एरियाज हैं जिनको वो कवर नहीं करते पार्टनरशिप डीड में। जैसे पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो लिखा उन्होंने, लेकिन इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ लिखा नहीं। तो जो चीजें या तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, या जो जो एरियाज पार्टनरशिप डीड में कवर नहीं किए, दे विल बी गवर्न्ड बाय द रूल्स गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल पार्टनरशिप एक्ट में दिए हैं। फर्म मस्ट फॉलो दीज रूल्स, है ना, समझ में आ रहा है आपको। या तो वो अपने खुद के रूल्स बनाए, और नहीं तो फिर उनका जो क्या बोलेंगे रेगुलेशन है दैट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट। इसलिए उनको बोलते हैं रूल्स अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कौन कौन से रूल्स फर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो तो एक लंबी लिस्ट है, हमारे सारे काम की नहीं है अभी। हम अभी जो पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग पर्पज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो कुछ अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो क्या है। पहला तो है जो हम अभी बात कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। क्या बताया था आपको साईराम। Shared equally. हाँ, या तो पार्टनर्स अपना डिसाइड करें, अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया तो प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट लॉस बराबर बढ़ेगा पार्टनर्स में, फिर कोई क्लेम नहीं कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मुझे कम मिला इसको ज्यादा मिला, दैट कैन नॉट बी सेड। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे हम। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। या तो वो लिखे अगर देना है तो, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिमिलरली नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर ने ड्राइंग्स किया उस पर भी फर्म को इंटरेस्ट नहीं लेगी, ना तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल को उनको, और ना उनसे इंटरेस्ट लेगी फर्म ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद है नो सैलरी और कमीशन। किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करे, ज्यादा काम करे, तब भी वो क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है,
पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा तो ही उसको इंटरेस्ट दे सकते, सॉरी सैलरी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन दे सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है पार्टनर्स ने, तो हम लोग उसको कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दे सकते, भले ही वो एक्स्ट्रा काम कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन granted by partners to firm, है ना। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया है, तब भी उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट है फर्म से। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विच आर अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड इन एरियाज में साइलेंट है तो फिर हमको ये वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। वी विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज, नो सैलरी और कमीशन or remuneration will be given to any partner, and 6% per annum interest will be allowed to the partners on loan granted by them to the firm। ठीक है राम। Yes, sir. अब जो पार्ट हमने भी पढ़ा, ये तो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, सबको याद है थोड़ा सा। ये पार्टनरशिप पढ़ा था, ये सारा आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है। अब इस साल जो स्टार्ट होगा हमारा वो है, अभी इसमें कोई डाउट है आप लोग को, इतना पढ़ा हमने इसमें? साई राम, साई राम। अभी जो पढ़ा इसमें डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है। तो अब जो नई थ्योरी इस साल के लिए है, जो न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, वो क्या है देखो। अब हमारे यहाँ आ गया नया टॉपिक है, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So there are two methods of preparing partners capital accounts. Number one, fixed capital method. And second one is the fluctuating capital method. Okay. There are two methods. Firm can adopt any of these two. ये पार्टनरशिप डीड में भी लिख सकते हैं कि हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करेंगे या फ्लक्चुएटिंग का। इन दोनों में से कोई मेथड वो यूज कर सकते हैं। ओके। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग capital accounts of the partners: fixed capital method and fluctuating capital method. Now let us discuss what is the meaning of fixed capital method. As the name suggests, fixed capital method is that method in which capitals of the partners remains fixed
और अनचेंज ईयर आफ्टर ईयर। लिख रहे हैं क्या आप लोग? The method in which capitals of the partners remains fixed or unchanged year after year. Because in this method we prepare two accounts. In this method we prepare two accounts. Number one, partners capital account. Number two, partners current accounts. समझ में आ रहा है क्या आपको? राम, Yes, sir. so we prepare two accounts, partners capital accounts and partners current accounts. And in partners capital accounts we write only capitals. Of partners and all other transactions related to partners like salary, interest on capital, profit, etc. are written in account. So capital remains same. Capitals remains same. तो समझ में आया आपको क्या लिखा मैंने? साईराम, हेलो, यस सर। देखो कैसे होगा, दोबारा समझो और आगे। जैसे दो पार्टनर हैं, दो लोग हैं, राम और श्याम। इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। राम ने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए कैपिटल और श्याम ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए कैपिटल। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10% पर एनम। ठीक है, राम को सैलरी मिलेगी, राम विल गेट सैलरी एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मंथ। ठीक है, और प्रॉफिट वो लोग शेयर करेंगे 2:1 के रेशो में। ठीक, और प्रॉफिट हुआ फर्म का 1,50,000 सपोज करो, है ना। ये इन्फॉर्मेशन दी है हमको। तो अगर हम इसको बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे? फिक्स कैपिटल मेथड में हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दो पार्टनर दो कॉलम बनाएंगे, इस तरह के बनाएंगे इस बार। जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनाने पड़ेंगे हमको, है ना। दो पार्टनर है तो राम, और अमाउंट वाले कॉलम दो बन गए, राम श्याम, है ना। तो बाय कैश अकाउंट आपने एंट्री की थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब वही हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख 1 लाख, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी 2 लाख 1 लाख।
अगले साल क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर? बाय बैलेंस बीडी 2 लाख 1 लाख, टू बैलेंस सीडी 2 लाख 1 लाख, फिर अगेन बाय बैलेंस बीडी। मतलब क्या होगा इससे साईराम? कैपिटल सेम रहेगी ना हर साल साईराम? Yes, sir. अब जो दूसरे ट्रांजेक्शन है पार्टनर्स के, वो क्या है? वो करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट, चेंज करना पड़ेगा। जो बाकी ट्रांजेक्शन है जो इस क्वेश्चन में दिए पार्टनर से रिलेटेड, वो करंट अकाउंट में लिखेंगे हम लोग। क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना परसेंट है? 10% है। उसको 20,000 मिलेगा, इसको 10,000 मिलेगा। बाय सैलरी है, राम को सैलरी मिल रही है, राम है श्याम है, 2,000 रुपये महीने, 24,000 रुपये सैलरी मिल गई। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, तो कितने का प्रॉफिट हो? 1.5 लाख का, 2:1 का रेशो है, तो इसको 1 लाख और 50,000 मिलेगा। इसका बैलेंस यहाँ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। इसका हो गया 1,44,000 और इसका हो जाएगा 1,50,000, नहीं 60,000 के 60,000। तो जो बाकी ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, वो हम लिखते हैं करंट अकाउंट में, इसलिए कैपिटल रिमेन सेम। करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है हर साल, है ना। अभी दूसरा मेथड पढ़ाएंगे, उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। उसमें ये हर साल कैपिटल चेंज होती है, क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट बनाते हैं और ये सारे आइटम एक ही अकाउंट में लिखते हैं। चलिए अभी तुम स्टॉप कर रहे हैं इसको, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसको, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग को। ठीक है, लेट्स शांति पार्ट, देन वी विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स। ओम शांति शांति शांति। साईराम। साईराम सर। ये बच्चे पर एब्सेंट होने लगे, 17 दिख रहे हैं मुझे केवल यहाँ पे। देखना पड़ेगा कौन कौन एब्सेंट है। साईराम सर।